Hello everyone, I am Dr. Preeti Jindal. I am Senior Consultant Gynecologist. I am Director of the Touch Clinic, which is an advanced IVF, cosmetic gynae, high-risk pregnancy, recurrent miscarriage and minimally invasive gynae center. Pregnancy is a beautiful time of life. It is a beautiful journey और उसके हर step को enjoy करना बहुत जरूरी है. Pregnancy is that moment when our body is giving birth to a new human being. So it is so special and so beautiful. उसको enjoy करके हम अपनी memories बहुत अच्छी बना सकते हैं जो हम बाद में अपने बच्चों के साथ share कर सकते हैं. तो इस journey का हर part वैसे तो important है, पर सबसे important part जिससे हमें डर भी लगता है, excitement भी होता है, वो है delivery. And delivery को हम labor भी बोलते हैं. And why is it called labor? Labor means hard work. So it is scary for some people, and the fear is usually because of unknown journey which we have to make. So it is basically a fear of unknown. And how do we get rid of this fear? By the knowledge which we want to give you through this webinar. So aim of this webinar is to help you understand the process of labor, delivery, and answer questions related to it. Delivery दो तरह की होती, vaginal delivery या cesarean delivery. उसको vaginal, आजकल हम उसको natural या unnatural नहीं बोलते. It is either the mode of delivery is either vaginal or the cesarean. विशाल जी आपको आ रही है आवाज? Yes, ma'am. Right. So, type of delivery is two types. Either it is vaginal or cesarean delivery. जो vaginally होती है उसको vaginal delivery बोलते हैं. जब vaginal delivery possible नहीं हो तो tummy पर कट देके हम uterus में कर देते हैं और बेबी को gently deliver कर देते हैं. उसको हम cesarean delivery बोलते हैं. What is the aim of any delivery? So, aim of delivery is to have a healthy baby and mother both. And they should not be only physically healthy, they should also be mentally healthy. So, having a delivery by either ways just make वो लोग physically healthy है, but they are mentally scarred. Mother के दिमाग में बहुत fear हो गया है, उसको आगे next pregnancy करने का मन ही नहीं कर रहा है. That is not a healthy delivery or healthy outcome. So, the mother should also be healthy, she should be happy, and she should be looking forward to the next pregnancy and the childbirth. And baby also should be healthy and happy. So what are the factors which determine what will be the mode of delivery? There are three factors: maternal, mother के factors, baby के factor, और एक तीसरा होता है placenta. Now what is placenta? बच्चे को blood supply और खाना mother से कैसे मिलता है? It is through a sponge-like organ which is known as the placenta. जिसका एक ही पर्पस होता है to feed the baby and give the nutrition to the baby and oxygen to the baby and keep the baby alive. ये बनता ही बेबी के लिए है और डिलीवरी के बाद ये एक्सपेल हो जाता है और बॉडी से निकल जाता है. So mother, baby and placenta, they together will decide your mode of delivery. अब मैटरनल फैक्टर्स में क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आता है वो है कि मदर का मेंटल मेकअप क्या है, मदर की चॉइस क्या है. Of course, the natural birth or the vaginal birth, which we say, is a type of natural form of delivery. But ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि every mother wants a vaginal birth. So mother's choice is also very important, because I feel, as I said, that along with physical health, your mental health is also very important. So if someone is very scared of vaginal birth, then of course obstetrician का ये purpose है. जैसे यहाँ पे टच क्लिनिक में हम बहुत कोशिश करते हैं, वो शुरू से प्रिपेयर करते हैं, एक्सरसाइजेस सिखाते हैं. ये वेबिनार भी हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे जो पेशेंट्स हैं और जो बाकी लोग के भी पेशेंट्स हैं उनको पता चले कि वेजाइनल डिलीवरी कैसे होती है और उससे उनका फेयर निकल जाए. बट स्टिल समटाइम्स
due to some past experience or some old experience, a mother may not like to go for vaginal delivery, then it is perfectly fine. Then one can opt for a cesarean delivery. अगर मदर की एज एडवांस्ड है more than 35 years, then the chances of having a vaginal birth definitely decreases, but then it is not that कि उनको cesarean करना ही है. एज के साथ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तो उन केसेस में चांसेस ऑफ हैविंग अ सिजेरियन बर्थ इंक्रीजेस. देन इफ यू हैव अ प्रीवियस सिजेरियन, then also the chance of having a cesarean delivery increases because क्योंकि एक cesarean birth हो चुका है, यूट्रस कार्ड है, तो पहले तो किसी वजह से cesarean हुआ होगा, तो वो अगर repetitive cause है तो भी आपका cesarean नेक्स्ट टाइम पे cesarean होगा. अगर वो repetitive cause नहीं है तो भी जब एक स्कार होता है तो उस यूट्रस के रप्चर होने के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, और उन केसेस में पेनलेस डिलीवरी नहीं कर सकते या नहीं डिजायरेबल होता, क्योंकि अगर मदर को पेन ही नहीं होगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि स्कार कब रप्चर हो रहा है. तो ऐसे केसेस में चांसेस ऑफ सिजेरियन डिलीवरी डेफिनेटली इंक्रीजेस. मल्टीपल प्रेगनेंसीज लाइक ट्विन्स और हाई ऑर्डर बर्थ्स, उनमें सिजेरियन इज प्रेफर्ड. देन टाइप ऑफ पेल्विस, आपका जो मदर और बेबी में का तालमेल होना बहुत जरूरी है. अगर आपका पेल्विस का साइज बेबी के साइज से छोटा है तो फिर बेबी का हेड उसमें फिक्स नहीं होगा और वो वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है. Then several maternal health problems like very high blood pressure. Even in that case, vaginal delivery is possible, but sometimes because of high blood pressure, preterm delivery करनी पड़ती है. तो उन conditions में for the safety of mother and baby, cesarean is preferred. Then comes a fetal factor. I feel fetal factors are one of the most important factors because अगर baby का lie जो है वो abnormal है, it is not a cephalic lie, उस case में normal delivery के chances नहीं होते. Then fetal size, sometimes babies are very big in size, तो उन cases में भी vaginal delivery possible नहीं हो पाती. पर अगर fetal size बड़ा भी है, not more than 4 kg and head term पर floating नहीं है, तो जो हम अभी आपको समझाएंगे what is floating and what is fixed head, तो उन conditions में भी cesarean करना पड़ता है. अगर बेबी के आसपास का पानी कम है, लाइकर कम है, लाइकर जिसको पानी भी बोलते हैं, तो फिर इट लीड्स टू ड्राई लेबर. तो उसमें अगर जब कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं तो अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेस होने का डर होता है, उसमें भी चांसेस ऑफ सिजेरियन आर मच हायर. प्रीटर्म डिलीवरीज में चांसेस आर बोथ फॉर वेजाइनल एंड सिजेरियन, पर अगर हमने प्लान करके प्रीटर्म डिलीवरी कर रहे हैं दैट मींस कि लाइकर बहुत कम है या पेशेंट का लाई एबनॉर्मल है या कुछ और कॉम्प्लिकेशंस है, उसमें सिजेरियन बेटर रहता है. अगर बेबी डिस्ट्रेस में है, उसकी हार्ट बीट एबनॉर्मल चल रही है या बेबी की ग्रोथ ही कम है, तो भी उसमें सिजेरियन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं. अगर अम्बिलिकल कॉर्ड बेबी के गले के अराउंड 2 बार या उससे ज्यादा होता है तो देन सिजेरियन बर्थ इज सेफर. प्लेसेंटल कॉसेस में आता है कि अगर आपका ऑल जो है वो नीचे है, यहाँ पे ऑल्स के पास है, मतलब कि बच्चे का रास्ता है डिलीवरी का, उसको अगर प्लेसेंटा कवर कर रहा है, उसको प्लेसेंटा प्रीविया बोलते हैं, तो वहां पे नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है. तो फिर लुक एट द लाइन, दिस इज द केफेलिक प्रेजेंटेशन, जिसमें हेड नीचे होता है और पैर ऊपर होते हैं. इस कंडीशन में वेजाइनल बर्थ पॉसिबल होता है. अगर ब्रीच है, मतलब सिर ऊपर है और बेबी के बटक्स नीचे हैं या पैर नीचे हैं, तो उसको ब्रीच बोलते हैं. पहले few years back breech vaginal delivery बहुत की जाती थी. I have done lots of breech vaginal delivery, पर आजकल ये encourage नहीं किया जाता क्योंकि ये देखा गया है कि breech vaginal delivery में बेबी को रिस्क ज्यादा होता है. दूसरा, आजकल most of the gynecologists are not trained for breech vaginal delivery, तो ऐसे में सेफ होता है कि सिजेरियन करके बेबी को डिलीवर कर दिया जाए. Then there is something known as oblique lie, जिसमें हेड नीचे, आइडियली हेड नीचे सेंटर में होना चाहिए. अगर हेड साइड में है तो भी वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको समझना है, जैसे हम अभी मैकेनिज्म समझाएंगे, कि हेड नीचे की तरफ पुश होगा तभी वेजाइनल डिलीवरी होगी. तो यूट्रस जब कॉन्ट्रैक्ट करता है वो हेड को नीचे पुश करता है, जिससे कि ये सर्विक्स ओपन होता है और फिर वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है.
ट्रांसवर्स लाइन कि बेबी बिल्कुल आड़ा लेटा हुआ है, वहां पे तो बिल्कुल भी वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। प्लेसेंटल फैक्टर्स में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर ये बेबी का रास्ता है और ये अगर प्लेसेंटा इसको पूरा कवर कर रहा है तो फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब ये सर्विक्स यूट्रस का माउथ ओपन होगा तो प्लेसेंटा से ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी और ऐसे में हमें सिजेरियन ही करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा डायग्राम है, अगर आप देखो तो ये बर्थ कैनाल है वेजाइना, ये यूट्रस है और ये यूट्रस का माउथ है जो बिल्कुल बंद होता है और धीरे धीरे खुलता है, ये हम आपको अभी समझाएंगे। What are the main fears regarding delivery? Anxiety. सबसे ज्यादा एंजाइटी होती है। वेजाइनल डिलीवरी पॉसिबल है अगर मदर एंशियस नहीं है। एंड फियर ऑफ पेनफुल लेबर, तो पेनफुल लेबर की आजकल बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब अच्छे सेंटर्स पे पेनलेस डिलीवरी का ऑप्शंस अवेलेबल है, यू शुड गो फॉर इट। ये इसके बारे में हम आपको भी समझाएंगे आगे। fear for delivery process, prolonged time for recovery, आजकल सिजेरियन और वेजाइनल दोनों ही इतने अच्छे तरीके से किया जाता है कि नेक्स्ट डे से ही आप उठ के चल सकते हो और आपको पेन नहीं होता है। Previous painful and difficult experiences also make you very anxious, which again is the duty of your obstetrician कि वो आपके दिमाग से उनको हटा दें। अब हर मोड ऑफ डिलीवरी के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। वेजाइनल डिलीवरी के फायदे क्या है? इट इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ डिलीवरी, देयर इज अ शॉर्टर हॉस्पिटल स्टे, शॉर्टर रिकवरी टाइम, मेजर सर्जरी नहीं होती एंड मदर इज एबल टू स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग सून। इसके डिसएडवांटेज भी है, ऐसा नहीं है कि इसके सारे एडवांटेजेस हैं। पेल्विक मसल्स दे बिकम लूज, वेजाइना गेट्स लूज, यूट्रस नीचे आने लगता है। आपने देखा होगा बहुत सारी लेडीज का यूट्रस बाहर आ जाता है, प्रोलैप्स हो जाता है और उनको बाद में इसकी सर्जरी करानी पड़ती है। एंड यूरिनरी एंड स्टूल इनकॉन्टिनेंस, मतलब खांसी करने पे यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है, जब आप इंटरकोर्स कर रहे हो तो स्टूल लीक हो जाता है, हवा निकलनी शुरू हो जाती है। सो ऑल दीज आर डिसएडवांटेजेस ऑफ वेजाइनल डिलीवरी। ऐसे ही सिजेरियन के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। सो सिजेरियन के एडवांटेजेस क्या है? दैट इज कि अगर आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी है अबाउट अ वेजाइनल बर्थ, यू कैन गो फॉर सिजेरियन। There is less likely to suffer from urinary incontinence and pelvic organ prolapse and can be scheduled in advance। कईयों को बहुत होता है कि हमें इस टाइम पे बेबी का डिलीवरी टाइम चाहिए और ये हमें डेट चाहिए, तो वो वेजाइनल डिलीवरी में पॉसिबल नहीं है। बस सिजेरियन के डिसएडवांटेजेस भी बहुत है, क्योंकि एक तो ये मेजर सर्जरी है, पेट काट के और यूट्रस काट के इस आपके बेबी डिलीवर होता है। इसमें लॉन्गर हॉस्पिटल स्टे होता है, लॉन्गर रिकवरी टाइम होता है, ब्लड लॉस ज्यादा होता है, रिस्क ऑफ अगर अच्छे सेंटर पे नहीं किया गया तो रिस्क ऑफ बाउल एंड ब्लैडर इंजरी होता है एंड कुछ सेंटर्स पे चार्जेस भी ज्यादा लगते हैं। सो हर चीज के अपने फायदे और नुकसान हैं। आपको जो आपके और आपके बेबी के लिए बेस्ट है, आइडियली दैट should be the reason to choose the mode of delivery. So when should one go for a vaginal delivery? अगर फीटल हार्ट एबनॉर्मलिटीज चल रही है, हाई ब्लड प्रेशर, एक्लेम्सिया हो रहा है, डायबिटीज हो रही है, पानी कम हो रहा है, मेटर्नल जेनाइटल इन्फेक्शंस आर वन कंडीशन कि नीचे इन्फेक्शन है, तो फिर वेजाइनल बर्थ से जब होगा तो बेबी को भी इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत बड़ा साइज है बेबी का, पेल्विस बहुत छोटा है, इट्स अ मल्टीपल और ट्विंस, ब्रीच और ट्रांसफर स्लाइड जो भी मैंने आपको समझाया, प्लेसेंटल एब्नॉर्मैलिटीज और बहुत रेयर और डेंजरस कंडीशन होती है कॉर्ड प्रोलैप्स की आपके बेबी का कॉर्ड ही बाहर आ गया, तब तो फिर 2 से 5 मिनट ही होते हैं कि दौड़ के सिजेरियन करके बच्चे को बचाया जाए। अब अपने हर चीज के बारे में हम आपको अच्छे से समझाएंगे। सो नाउ आई इनवाइट डॉक्टर रिद्धि कालरा, हु इज कंसल्टेंट एट द टच क्लिनिक, और जो टच क्लिनिक आते हैं काफी लोग डॉक्टर रिद्धि से मिले भी होंगे। शी इज अ सीनियर कंसल्टेंट एट द टच क्लिनिक and she will take you through the mechanism of labor. So I invite Dr. Riddhi. Thank you, ma'am. Hello, I am Dr. Riddhi, consultant gynecologist at Touch Clinic. और मैं आपको आज समझाऊंगी मैकेनिज्म ऑफ लेबर। इस वेबिनार का मेन पर्पस ये है कि जो भी एंजाइटी है, जो भी फियर है आपके माइंड में नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी को लेकर या सिजेरियन सेक्शन को लेकर, we'll try to clear the doubts as much as possible.
तो सबसे पहले तो लेबर होता क्या है? लेबर मींस द प्रोसेस बाय व्हिच बेबी और प्लेसेंटा होते हैं जिससे बच्चे को ब्लड सप्लाई मिलती है, दे लीव द यूटेरस। अब जो डिलीवरी है वो दो तरीके से हो सकती है, या तो वो वेजाइनली होगी, इसे कहते हैं नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, या फिर हम इसे सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर करते हैं। सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं। जो बहुत से पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हमें लेबर पेन्स शुरू हो गई है या नहीं हुई है। तो कैसे पता चलेगा? उसके कुछ साइंस और सिम्टम्स होते हैं, जैसे पेन इन द लोअर एब्डोमेन एंड पेन इन द बैक। कैसे पता चले कि फॉल्स पेन्स हैं या वो ट्रू पेन्स हैं, उसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको पेन हो रही है लोअर एब्डोमेन में, बैक में, जो इंक्रीज हो रही है इन ड्यूरेशन एंड आल्सो इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी, तो दैट मींस कि आप लेबर में जा रहे हो। और ये भी हो सकता है कि पेन्स नहीं स्टार्ट हुई है एंड योर वाटर बैग माइट रप्चर सडनली, और एकदम से गश ऑफ लाइक एम्नियोटिक फ्लूइड जो है। Ma'am, your screen is not presenting. Can you share your screen? ओके, You cannot see your PPT. अब दिख रहा है विशाल जी? देखिए। नहीं मैम, अभी भी नहीं। ओके, फिर से एक बार स्टार्ट करते हैं। राइट। आप बताना जब दिखता है इसमें ना स्क्रीन राइट शेयर मैम, हो रहा। राइट। अभी नहीं हो रहा? नहीं मैम, मतलब स्क्रीन आपकी शेयर है बट पीपीटी नहीं दिख रही। ओके, आंचल इस पे कर रही है वर्क। ओके। से ये रीस्टार्ट होगा। तब तक मैं आपको बेसिक सा बताती हूँ कि साइंस ऑफ लेबर में मैंने बताया कि तो बैक एक हो सकती है, दूसरा वाटर बैग माइट रप्चर, और तीसरा होता है कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, जिसे हम कहते हैं शोर। ब्लीडिंग क्यों होती है? बिकॉज जो सर्विक्स है, यूट्रस का माउथ है, वो डायलेट होना शुरू हो जाता है और ब्लड वेसल्स जो होते हैं वहां पर वो रप्चर हो सकते हैं, तो उसे कहते हैं शोर। अगर ऐसा कोई भी सिम्टम आपको फील होता है तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आप मैम को कॉल करें, ताकि जहां पर भी आपने प्लेस ऑफ डिलीवरी डिसाइड किया है हम वहां पे कॉल करके अरेंजमेंट्स करवा सकते हैं। और आपकी जो प्लेस ऑफ डिलीवरी है दैट शुड बी डिसाइडेड बाय 35 वीक्स कि आपने कहाँ डिलीवरी करवानी है, एंड योर बैग शुड बी रेडी आफ्टर 35 वीक्स। और आपको जब भी कोई भी लेबर पेन के सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं तो आप दिख रहे हैं विशाल जी? यस मैम, राइट राइट। सो जब भी आपको पेन स्टार्ट होती है आप अपना बैग उठाएं और जहां पर भी आपने प्लेस ऑफ डिलीवरी डिसाइड किया हुआ है वहां पर पहुंच जाएं। हमारी टीम में से कोई ना कोई डॉक्टर आपको वहां पर देखने पहुंच जाएगा, प्लस हमारा एक स्टाफ भी वहां पर अकम्पनी करेगा आपको। तो दिस इज अ स्पेशल फीचर जो कि टच क्लिनिक प्रोवाइड करता है कि थ्रू आउट योर लेबर आपके साथ एक ना एक डॉक्टर, एक ना एक कंसल्टेंट आपके साथ बैठते हैं थ्रू आउट योर लेबर जर्नी। और हम टाइम टू टाइम आपको गाइड करते रहेंगे कि किस स्टेज ऑफ लेबर पे हम हैं, आगे क्या करना है। सो वी आर देयर टू रिलीव योर एंजाइटी। अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज कि कैसे पता चले कि वो ट्रू लेबर पेन्स है या फॉल्स लेबर पेन्स है। तो जो फॉल्स लेबर पेन्स हैं दे आर नोन एज ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शंस। वो 26 वीक्स के बाद स्टार्ट हो जाती है बिकॉज वो एक नेचर का मैकेनिज्म है फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। बट ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शंस जो होती हैं वो बहुत इरेगुलर होती हैं। प्लस अगर आप रेस्ट करते हैं या माइल्ड मेडिकेशन जैसे क्रोसिन वगैरह से वो रिलीव हो जाती है, चेंज इन पोजीशन से रिलीव हो जाती है। जो ट्रू लेबर पेन्स हैं दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इन ड्यूरेशन। जैसे जैसे लेबर पेन्स बढ़ती रहेंगी उनकी ड्यूरेशन जो है वो कम होती रहेगी, जल्दी जल्दी आना शुरू हो जाएंगे लेबर पेन्स, एंड दे विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इन इंटेंसिटी, और उनकी जो इंटेंसिटी दे विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर। सो this is how you can differentiate between true and false labor pains. Premature labor means अगर लेबर 37 वीक्स से पहले स्टार्ट हो जाती है उसे कहते हैं premature labor, 37 वीक्स के बाद उसे term labor कहते हैं। एंड ड्यूरेशन ऑफ लेबर कितने टाइम की रहती है? सो इट इज ऑफ 16 आवर्स अगर सेकेंड डिलीवरी है, बट प्राइमरी में मतलब जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है इट मे लास्ट फॉर अबाउट 24 आवर्स।
ऑनसेट ऑफ लेबर कैसे पता चलेगा? दैट इज रेगुलर पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। तो कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगी और जो बच्चेदानी का माउथ है दैट इज नोन एज सर्विक्स, वो डायलेट होना शुरू हो जाएगा। वो आगे स्लाइड्स में आएगा, सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में। जैसे ही आप हॉस्पिटल में पहुंचते हैं लेबर पेन्स के साथ, वहां पर आपको एक स्टाफ अटेंड करेगा और आपका ब्लड प्रेशर देखेंगे, टेम्परेचर, योर पल्स, वाइटल्स विल बी मॉनिटर, आपको कंफर्टेबल किया जाएगा और वहां पे एक एनएसटी मशीन लगाई जाएगी आपको, जिससे बेबी का हार्ट रेट देखा जाएगा। हम क्लिनिक पर भी करते हैं 36 वीक्स के बाद, इसे कहते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट। तो ये 10 मिनट्स का फीटल हार्ट का पैटर्न होता है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि बेबी अंदर कैसे बिहेव कर रहा है। बिफोर 36 वीक्स हम आपको वैसे भी 28 वीक्स के बाद फीटल मूवमेंट का ट्रैक रखने के लिए बोलते हैं, क्योंकि 28 वीक्स के बाद बेबी इज वायबल, बेबी को बचाया जा सकता है कोई भी प्रॉब्लम आती है तो 28 वीक्स क्रॉस होने के बाद आपने कैसे ट्रैक रखना है कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद, दोपहर में लंच के बाद और रात में डिनर के बाद 1 घंटे में 3 मूवमेंट्स होने चाहिए। मतलब 3 मॉर्निंग में, 3 आफ्टरनून में और 3 डिनर में। कभी भी आपको लग रहा है कि मूवमेंट्स कम हो रहे हैं, सो आप रेस्ट करो, एक पर्टिकुलर पोजीशन में लाई डाउन करके ऑब्जर्व करो, कुछ भी शुगरी चीज लाइक एनी जूस या चॉकलेट व्हाटएवर यू हैव विद यू, उसको कंज्यूम करके देन यू ऑब्जर्व। अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं 2-3 आवर्स हो गए हैं, आई एम नॉट परसीविंग, आई एम नॉट हैप्पी विद द फीटल मूवमेंट्स, यू गिव अस अ कॉल सो दैट वी कैन गेट योर अल्ट्रासाउंड डन। और 36 वीक्स के बाद तो हम एनएसटी जो आपको दिख रहा है पिक्चर में, ये हम करते ही हैं वीकली। सो आपका वहां पर भी एक एनएसटी किया जाएगा और कोशिश यही रहती है कि जब आप लेबर में हो तो कांस्टेंट फीटल हार्ट रेट की मॉनिटरिंग की जाए। तो ऊपर आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा 123, दैट इज द फीटल हार्ट रेट। तो फीटल हार्ट रेट जो नॉर्मल होता है वो 110 से लेके 160 तक होता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, फीटल डिस्ट्रेस मींस अगर वो 110 से कम है या वो 160 से ज्यादा है, तो वो आपको स्क्रीन पर खुद दिखेगा और साथ में कोई ना कोई डॉक्टर आपके पास पहुंचेंगे एंड वी विल डू योर इंटरनल एग्जामिनेशन, जिसे कहते हैं सर्वाइकल असेसमेंट। तो स्टेजेस ऑफ लेबर में 4 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर क्या होता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है फ्रॉम द onset of the labor pains till your dilatation of cervix, that is known as first stage of labor. अब सर्विक्स जो होता है वो प्राइमी, जो फर्स्ट जिनकी प्रेगनेंसी होती है उनमें क्लोज्ड होता है और सर्विक्स को कितना खुलना होता है? अराउंड 10 सेंटीमीटर खुलना होता है, बिकॉज जो हेड का डायमीटर है बेबी का दैट इज अराउंड 9.5 सेंटीमीटर। तो स्टेजेस ऑफ लेबर मैं आपको बता चुकी हूँ, 4 स्टेजेस होते हैं। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शंस आना शुरू होती हैं, सर्विक्स में चेंज, सर्विक्स आप देख रहे हैं पिक्चर में, वो माउथ ऑफ यूटेरस इज नोन एज सर्विक्स। सो आपको फर्स्ट पिक्चर में अगर आप देखें, आपको पता चलेगा कि सर्विक्स कितना थिक है, प्लस इट इज नॉट डायलेटेड, सो इट इज क्लोज्ड एंड इट इज थिक। जैसे जैसे लेबर पेन स्टार्ट होंगी और बढ़ेंगी तो सर्विक्स खुलना शुरू हो जाएगा, जिसे कहते हैं सर्वाइकल डायलेटेशन, और वो थिक जो होता है वो पतला होना शुरू हो जाएगा, उसकी थिनिंग शुरू हो जाएगी, उसको कहते हैं इफेसमेंट। जब आप फुल डायलेटेशन में होते हो, मतलब बेबी इज अबाउट टू कम, तो सर्विक्स इज अराउंड 10 सेंटीमीटर डायलेटेड और बिल्कुल पेपरी थिन हो जाता है उस टाइम पे सर्विक्स। जब तक सर्विक्स क्लोज्ड है से लेकर 3 सेंटीमीटर तक, उससे बोलते हैं लेटेंट फेज। लेटेंट फेज मींस अभी आप एक्टिव लेबर में नहीं गए। 3 सेंटीमीटर के बाद जब हम एग्जामिनेशन करते हैं, आपको हम बताएंगे कि योर सर्विक्स इज क्लोज्ड या योर सर्विक्स इज 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर डायलेटेड। तो जब 3 सेंटीमीटर डायलेट हो जाता है, उसके बाद हम कहते हैं उसे एक्टिव लेबर। नाउ वंस यू हैव एंटर्ड इनटू एक्टिव फेज ऑफ लेबर, उसके बाद हर घंटे में सर्विक्स शुड डायलेट एट अराउंड 1 सेंटीमीटर पर आवर। तो अगर 3 सेंटीमीटर है, उसको 10 सेंटीमीटर तक जाना है, तो अनदर 7 आवर्स हमारे पास हैं अभी लेबर के। डायलेटेशन के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट फीचर होता है जो हम इंटरनल एग्जामिनेशन पे नोट करते हैं, दैट इज नोन एज डिसेंट। डिसेंट मतलब जैसे कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, बेबी नीचे आने की तरफ कोशिश करेगा। ये जो साइड पर बोन्स बनी हुई है, दिस इज योर पेल्विक बोन, और उसके अंदर बेबी जो है वो एंटर करने की कोशिश करता है विद कॉन्ट्रैक्शंस। तो इसमें अलग अलग स्टेशंस होते हैं। अंदर 2 बोनी प्रोमिनेंसेस होती हैं जिन्हें कहते हैं इस्चियल स्पाइन्स।
जब बेबी का हेड बिल्कुल ऊपर होता है उसे कहते हैं -3 स्टेशन, फिर वो नीचे आना शुरू होगा, स्पाइन्स के लेवल तक आएगा, उसे कहते हैं 0 स्टेशन, फिर वो और नीचे आएगा +1, +2, +3 and then डिलीवरी अकर्स। तो जब हम आपका इंटरनल एग्जामिनेशन करते हैं हम दो चीजें देखते हैं, एक सर्विक्स शुड डायलेट, दूसरा बेबी का हेड जो है वो पेन्स के साथ नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा। फॉर एनी रीजन सपोजेडली सर्विक्स पूरा 10 सेंटीमीटर तक खुल चुका है मगर बेबी का हेड अभी भी ऊपर है, देन वी हैव टू बी वरीड कि बेबी का हेड नीचे क्यों नहीं आ रहा, बिकॉज बेबी विल ट्राई टू टेक द कंफर्टेबल पोजीशन, जिस पोजीशन में उसको कंफर्टेबल लगेगा वो उसी पोजीशन में रहेगा। दूसरी चीज आती है एमनियोटिक फ्लूइड। आपको पता है बेबी जो है वो बैग में फ्लोट करता है जिसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो जब अच्छा सा हम एग्जामिनेशन करते हैं, गुड कॉन्ट्रैक्शंस आ रही हैं, तो एक अच्छा सा बैग बनता है जिसे कहते हैं वाटर बैग, और फिर हम उसको कई बार वो स्पॉन्टेनियसली रप्चर हो जाता है अगर बहुत अच्छी पेन्स आ रही है, नहीं तो उसको हम रप्चर कर सकते हैं टू एनहांस लेबर पेन्स। दिस इज नोन एज रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, और उसमें से कैसा फ्लूइड निकलता है उसका कलर हम नोट करते हैं। So, second stage means the cervix has fully dilated और अब हमारी बेबी की डिलीवरी हो रही है। And third stage means now the baby has delivered और फिर उसके बाद क्या आएगा, प्लेसेंटा, जिससे बच्चा अटैच्ड होता है, the baby के बाद प्लेसेंटा comes out. So these are the stages of labor in brief. But बहुत से पेशेंट्स जब लेबर में जाते हैं तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि कितना टाइम लगेगा। तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि फर्स्ट प्रेगनेंसी में अराउंड 24 आवर्स आप एक्सपेक्ट करके चलें। सो व्हाट वी डू इज प्रेफरेबली जो भी आपकी अगर तो आप अपने आप लेबर पेन स्टार्ट हो जाती हैं देन तो नथिंग लाइक इट, फिर तो आप अपने आप लेबर में जा रहे हैं। बट बाय चांस अगर आपको लेबर पेन्स नहीं स्टार्ट होती टिल 38 या 39 वीक्स, देन वी कैन गो फॉर प्लान्ड इंडक्शंस। नाउ प्लान्ड इंडक्शंस क्या होता है कि आपको हम एडमिट करके आर्टिफिशियल पेन्स देना शुरू करते हैं। अब बहुत से लोगों के माइंड में ये मिथ होता है कि प्लान्ड इंडक्शंस इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सिजेरियन सेक्शंस। नो, इट्स अ बिग नो। अगर बेबी ने नॉर्मली आना है देन बेबी विल कम, चाहे वो नॉर्मल अपने आप लेबर पेन स्टार्ट हो रही हो या हम प्लान्ड इंडक्शन कर रहे हो। एंड अगर नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही बिकॉज ऑफ एनी फैक्टर जो मैम ने भी स्टार्टिंग में हाईलाइट किए थे, जैसे कि बेबी के कोई लूप ऑफ कॉर्ड अराउंड नेक है या आपका जो मैटरनल पेल्विस है वो छोटा है, तो वो अपने आप लेबर में जाओगे तो भी नहीं आएगा। कोविड पेंडेमिक्स में प्लान्ड इंडक्शंस आर मच सेफर बिकॉज जब आपकी डेट डिसाइड होती है, हम आपको पेन्स इंड्यूस करते हैं, तो आपके बेबी की फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग जो है वो कांस्टेंट हो सकती है। बट अगर आप घर पे लेबर में जाते हो, आपको हॉस्पिटल पहुंचने में अराउंड 1.5 आवर्स लग जाते हैं। सो ड्यूरिंग दैट टाइम द बेबीज हार्ट बीट इज नॉट बीइंग मॉनिटर्ड। सो प्लान इंडक्शंस आर आल्सो सेफर। और जिन्होंने बाहर से आना होता है, हमारे पास बहुत पेशेंट्स हैं जो बाहर से आते हैं, तो उनके लिए भी प्लान इंडक्शंस कैन बी एडवाइज्ड। जब बेबी बाहर आ रहा होता है, बेबी का हेड दिखना शुरू होता है, बेबी के हेयर दिखना शुरू होते हैं, तो उसे कहते हैं क्राउनिंग। और जब क्राउनिंग हो जाती है तो हम एक छोटा सा कट देते हैं, दिस इज नोन एज एपिजियोटमी। और ये सेंटर में आप देखेंगे एनस है जहां से स्टूल पास होता है, सो हम लेफ्ट साइड पर एक छोटा सा कट दे देते हैं, बहुत छोटा सा होता है ये। और जब बेबी बेसिकली हेल्प्स इन डिलीवरी, तो जब बेबी बाहर आता है वो अपने आप ही इट विल फाइंड द वे। So episiotomies are safer. अगर चाहे प्री टर्म डिलीवरी हो रही है चाहे टर्म डिलीवरी हो रही है, episiotomies are much safer क्योंकि वो बेबी के लिए कॉम्प्लिकेशंस अवॉइड करती हैं। और इसको स्टिच भी बहुत यूनिक टेक्निक से किया जाता है, डिसॉल्वेबल स्टिचेस होते हैं, आपको फील भी नहीं होगा। स्पेशल प्रिकॉशंस क्या लेनी होती है कि डिलीवरी के बाद कॉन्स्टिपेशन ना हो, उसके लिए हम आपको कोई भी स्टूल सॉफ्टनर दे सकते हैं, प्लस आपको क्रॉस लेग करके नहीं बैठना होता फॉर अराउंड 2 वीक्स। जैसे ही डिलीवरी होती है आपकी, अगर सब कुछ अनइवेंटफुल रहता है तो नेक्स्ट डे हम आपको डिस्चार्ज कर देते हैं। और बाय चांस अगर फॉर एनी रीजन नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही है, हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ जाता है, तो भी सिजेरियंस आर एब्सोल्युटली सेफ। बहुत अच्छी एडवांस टेक्निक आ चुकी है सिजेरियन सेक्शन की, सो डरने की बिल्कुल भी कोई बात नहीं है। बहुत छोटा सा कट आता है। फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर मींस जो कि बेबी की डिलीवरी के बाद रिकवरी फेज है। कमिंग टू द सिजेरियन सेक्शन, तो अगर हमें बाय चांस सिजेरियन करना पड़ भी जाता है फॉर एनी रीजन, आप देख लें छोटा सा कट आता है बिल्कुल, और वो बाद में विजिबल भी नहीं होता, इट इज गिवन बहुत नीचे दिया जाता है फॉर कॉस्मेटिक पर्पस,
और 6 आवर्स फास्टिंग हम प्रेफर करते हैं सिजेरियन सेक्शन में, और बहुत अच्छी टेक्निक से स्टिच किया जाता है। सो बाद में भी पोस्ट ऑफ पेन रिकवरी में आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। एंड ट्रांसवर्स इंसिजन दिया जाएगा, पेनलेस हम ऑप्ट करते हैं, चाहे आप नॉर्मल डिलीवरी की ऑप्ट करें या हम सिजेरियन सेक्शन के लिए करें, आपको पेन नहीं होगा। पेनलेस के बारे में मैं डिटेल में इसलिए नहीं कवर कर रही बिकॉज डॉक्टर चेरी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पेनलेस लेबर कि पेनलेस लेबर होता क्या है। सो चाहे सिजेरियन सेक्शन हो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो, 6 आवर्स के बाद आप उठ के वॉक कर सकते हैं, नॉर्मल खा पी सकते हैं, और इनफैक्ट नेक्स्ट डे सिजेरियन में भी हम आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं। वैसे आपका पैकेज 72 आवर्स का होता है, बट वी कैन डिस्चार्ज यू ऑन व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल विद। और स्टिचलेस सर्जरी होती है, बहुत अच्छे से सब क्रिटिकल इंसिजन जो स्टिचेस हैं वो लगाए जाते हैं, बाहर से आपको स्टिच नजर भी नहीं आएगा, और उनको रिमूव नहीं करना होता, वो सेल्फ डिसॉल्वेबल होते हैं। जब भी डिलीवरी होती है, सो वी ट्राई टू फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ बेबी टू द मदर, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन सेक्शन हो, बेबी को सबसे पहला कॉन्टैक्ट मदर का दिया जाता है। उसका फायदा क्या होता है? ऑब्वियसली बेबी जो है दैट इज बॉन्डिंग डेवलप होती है, राइट? और नेचर हैज मेड सच ए ब्यूटीफुल थिंग कि अगर आप बेबी को मम्मा की टमी पे भी रखोगे, सो बेबी विल स्टार्ट क्रॉलिंग टुवर्ड्स द निपल्स। सो दिस गॉड हैज मेड सच ए ब्यूटीफुल थिंग। सो इससे लैक्टेशन जो है वो भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है, और फर्स्ट फीड जो है वो तभी दे दी जाती है बेबी को, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन सेक्शन। स्टेम सेल कलेक्शन का डिटेल में हम कभी फिर किसी वेबिनार में डिस्कस करेंगे, बट स्टेम सेल कलेक्शन थोड़ा सा बेसिक बता देती हूँ होता क्या है। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? दे आर हाईली टोटिपोटेंट सेल्स जिनसे कोई भी आगे जाके बॉडी का ऑर्गन रीजनरेट किया जा सकता है। तो स्टेम सेल कलेक्शन डिलीवरी के टाइम पर करते हैं, और हम लोग ही करते हैं स्टेम सेल कलेक्शन, चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन हो। आगे जाके इसका कितना यूज है, देखा गया है कि डायबिटीज में, ल्यूकीमिया में इट इज यूजफुल, बट इट इज जस्ट अ काइंड ऑफ इंश्योरेंस। कितना यूज है कितना नहीं है, दैट इज स्टिल इन रिसर्च पर्पस, हमें नहीं पता, बट दैट इज अगेन एज पर योर फाइनेंसेस आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको स्टेम सेल करवाना है या नहीं करवाना। Now I invite Dr. Cherry, and she'll be discussing how to ease your labor journey and painless labor. Thank you. Dr. Ritu, for a wonderful session. Without wasting time, we'll go ahead. Now, having a normal vaginal delivery, उसके लिए हमें क्या-क्या मेहनत करनी पड़ेगी to have a successful vaginal delivery. So, you should eat healthy and exercise during the pregnancy. इसके लिए आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, और वहाँ पे we have different portals where we suggest you what all exercise you have to do during the all 3 trimesters of your pregnancy. Keep yourself active during pregnancy. Pick a birth partner. You can pick your husband during your delivery and during your pregnancy, which will help you to exercise during this process. Keep an open mind. ये मत सोचिए कि vaginal delivery ही मुझे करानी है. Whatever is best for you and for your baby, go ahead with that. Trust yourself and your doctor. Refrain from the myths कि castor oil and घी पीने से vaginal delivery हो जाएगी. These are all myths. Trust your doctor's advice and educate yourself. Now at Touch Clinic, we have the parent craft classes where we educate, you can see here, where we educate the mothers regarding the delivery and the other things. We bust the myths, and there are our physiotherapist trainer who tells us what all exercise we need to do during the delivery. Apart from this, different other classes are also taken and all your queries are answered. But now because of the corona, we prohibit these parent craft classes at the Touch Clinic. So that's why these seminars are formed, so that you can watch it and will help you answer all your queries. Now, what care you have to take during the labor? You have for a good labor pain and to carry that labor thing, you have to exercise nicely. You should choose a good obstetrician which has a good healthcare facility. You have to take the COVID precautions. अभी आपको ये ध्यान रखना है कि COVID अभी गया नहीं है. So avoid going outside in the market. और अगर कहीं जाना भी है तो apply a shield and then go to the outer side. Avoid instrumental delivery definitely, and avoid the bad vaginal cuts.
cesarean, if in case you're undergoing a cesarean, as you can see in the picture, what's the difference between a good scar and a bad scar? So there's a transverse incision which you normally give. It is known as the Bicknell. It's given along the Bicknell line, and invisible stitches are applied there. Now, what is important for you is that Anshu, there's something wrong here. Right, previous slide. Okay, now you have to consider that pregnancy is like a safety profile. See, magic is in the hands of magician. So you should choose a well-trained doctor who is well educated and expert in doing this procedure, and definitely the experience counts. What are the effective methods to ease the labor pain? So changing positions during labor, they really help. Walking or sitting more upright speeds up the process of the labor. So sitting upright or sitting on a gym wall will really help you to ease out your pain during the labor. So partner support is equally important, with the deep breathing exercises also help to ease out your pain. And the good way to ease out your pain is relaxation, is that listening to your music, whichever music you like, will definitely help you in relaxing yourself. And roaming in is highly advisable, especially during the first stage of labor. Massages during labor also helps to ease out the pain and divert yourself in some other activity. Now, physiotherapy, it really helps, especially in the second stage of labor, where you really have to strain for the baby to come out. Now, many of us has a question about the painless delivery, epidural, which is known as epidural. अब बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं कि मैम we don't want to go for the vaginal delivery because we have heard from our friends or from our mothers that इसमें बहुत pain होता है. But nothing to worry about. Nowadays, definitely epidural analgesia is advised, especially if you are undergoing a vaginal delivery, जिसमें pain बिल्कुल नहीं होता. As you can see in the picture, the anesthetic doctor, they come and apply a catheter. They apply a catheter in the at the back inside your along the rib bone, backbone. They apply the catheter as seen in the picture. This is known as epidural catheter, through which the epidural drugs are given, which decreases your pain stimuli but doesn't have any effect on the contractions. So now actually why exactly the pain occurs? Now pain occurs because uterus contracts and relaxes. So uterus contract होगा, relax होगा, जिसके कारण baby नीचे push होगा. So these contractions, they are like a vigorous exercise which is responsible for the pain. Pain impulses travel from the uterus to the brain via the nerve in the backbone. So जो हमारी nerve रहती है, जो ये pain stimuli लेके जाती है from the uterus to the brain. Initially, they are mild, slowly increases in frequency and severity, more in anxious as in primary. So, जिनकी पहली डिलीवरी होती है, जिनको कुछ पता नहीं होता है vaginal delivery के बारे में, उनमें pain stimuli ज़्यादा रहता है. But each woman's labor is unique. So basically, what the epidural does is ये जो nerve pain लेके जा रही है, इसकी intensity decrease कर देता है, ताकि आपको pain ना हो, but the intensity of contractions will be same as in the other person who has not taken the epidural analgesia. So the different questions are: will the labor progress if there is no pain? Now, epidural technique blocks only the pain produced by the uterine contractions. They do not reduce the intensity and frequency of the contractions. So ये बात हमेशा याद रखिए कि ये खाली pain को block करते हैं, not the intensity of the contractions. So thus, it does not have a bad effect on the progress of labor. Actually, it fastens the progress. Now, common worries are: does epidural increases the chances of cesarean section? No. Does epidural affect the breastfeeding? No. Does epidural causes the back pain? No, not at all. The reason for back pain after delivery is because of the laxity of the ligaments and abdominal muscles.
change in the curvature of the back, and then especially the lack of the calcium in the diet and the supplement. आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि आप after delivery you are feeding your baby also, so you actually need the calcium in your diet, or you have to take supplements for it. Now we at Touch Clinic, we deliver our patients at two places. First is the Fortis Hospital in Mohali, and again then the Shelby Hospital at Mohali. There is a special facility provided by our Touch Clinic team that one doctor and one staff accompanies you throughout your labor to make your journey a pleasant and comfortable one. So whenever you have passed your 28 weeks, why 28 weeks? Because 28 weeks are the weeks of viability for the fetus. In case अगर आपकी डिलीवरी किसी कारण 28 वीक से उसके बाद होती है तो हम बच्चे को बचा सकते हैं. So once you have crossed your 28 weeks, you should decide your place of delivery, pack your delivery bag, and plan your finances accordingly. Though we definitely, our main aim is to reach 37 weeks of your gestation. So here is our Touch Clinic team headed by Dr. Preeti Jindal with the beautiful mothers and their awesome babies. So here's a ceremony where there's a gift giving ceremony given to the mothers and the kids after the delivery. And there's a good thing that we at Touch Clinic, we don't leave our patients even during the COVID times. In case, God forbid, you become COVID positive also, then also we don't say, no, we will not deliver you. Definitely, you are our patient, you are our family. We will still deliver you even during the COVID times. And there are different facilities which are present at the Touch Clinic. With even if you don't want to come at the clinic, you can always have an audio or the video consult. Then the lab is there where a home delivery can also, the guys, they come at your home and then they collect your sample for different testing. Then the medications are also there. And the other thing is, the good thing is, there is a My Little Pregnancy Companion book written by Dr. Preeti Jindal, which is available at the Touch Clinic and on Amazon, which you guys can definitely are welcome to go through it, and it will really help you and solve most of your queries regarding the pregnancy and even after pregnancy also. Now I would like to call Ms. Anchal to end up the session, please. Thank you, ma'am. Now, quick information regarding the Touch Clinic services. We take all precautions for COVID-19. Consultation with prior appointments only. COVID testing is done prior to delivery or any surgery. We take care of all the safety parameters in our clinic. We have a Touch pharmacy, जैसे कि अभी Dr. Cherry ने बताया. We have a pharmacy also, home delivery of medicines available at your doorstep. For that, you have to call on the number 0172 5032 and 9613112000. आप इन नंबर से कॉल करके होम डिलीवरी करवा सकते हैं मेडिसिन की. We have a lab also, home blood sample collection facilities also available. You can call on the number 0172 5032 and 99157 48821. इन नंबर्स पे कॉल करके आप होम ब्लड सैंपल कलेक्शन के लिए भी हमारे एग्जीक्यूटिव को बुला सकते हैं. राइट, एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी. इनकेस जैसे कि कोई नहीं विजिट करना चाहता है क्लिनिक में ड्यू टू डिस्टेंस या कोविड की वजह से, तो वो वीडियो कंसल्टेशन और फोन कंसल्टेशन कर सकता है. उसके लिए आपको अपना जो है बुकिंग स्लॉट जो है वो बुक करना होगा बाय कॉलिंग ऑन द नंबर्स. इस पे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, मैं आपको बता भी देती हूँ. 99157 48821 and 9888448803. आप इन नंबर्स पे कॉल करके अपनी जो है स्लॉट बुक कर सकते हैं. राइट, सबको पता ही है कि जैसे कि हम एवरी वीक एवरी फ्राइडे सेम टाइमिंग्स 3 to 4 वेबिनार्स करते हैं. तो हमारा जो नेक्स्ट वेबिनार है दैट इज ऑन स्टॉप एजिंग. आपका स्टॉप एजिंग पे जितना भी हम कवर कर सकते हैं हम कवर कर रहे हैं, जिसमें स्पीकर रहेंगे हमारे डायरेक्टर डॉक्टर प्रीति जिंदल, डॉक्टर आकांक्षा एंड डॉक्टर चेरी. नेक्स्ट फ्राइडे रहेगा ये 6 अगस्त को. तो प्लीज आप जरूर लॉगिन होइएगा. इनके से किसी ने बीच में लॉगिन किया है, आधा सुना है और पूरा सुनना चाहता है, या कोई ऐसा वेबिनार आप
सुनना चाहते हैं, जो आपने अभी तक जिसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, तो आप हमारी वेबसाइट पे लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thetouchclinic.com। ये स्क्रीन पे भी शो हो रही है एंड में। आप इस वेबसाइट पे जाके सारे वेबिनार्स को सुन सकते हैं। अगर आपको लगता है ऐसा कोई वेबिनार का टॉपिक जो हमने अभी तक नहीं कवर किया है, तो हम वो कवर करना चाहेंगे, आप हमें मैसेज या मेल या कॉल करके बता सकते हैं। 13 अगस्त के बाद जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगा, लाइक 20th of अगस्त, तो हम वो टॉपिक उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो stay tuned. We will see you again on next Friday at same timing, 3 to 4. Thank you everyone.